तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना काला विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारिया अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, वो सरगुण रूप है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद विच अमृत वेले दे दीवान विच जुड़ बैठी सरबत साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटै हर सेवा। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। आओ जो लड़ीवार विचार पावन बानी श्री जपजी साहिब जी दी, जो आद बानी है उसकी जो लड़ीवार विचार हुण तक 11 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। प्यारी साध संगत, अगली पौड़ी अगलियां 4 पौड़ियां मन्ने दियां हन। आओ पहले मूल पाठ करिए, फिर जैसी जैसी मेरे सतगुर पातशाह कृपा करनगे पढ़ो प्यार नाल। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखण हार, मने का बह करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मने की गत कही ना जाए। इस तो पहले 4 पौड़ियां सुने दियां सन। विषय वही है, किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। किवें साडा अंतਿਸ਼ਕਰਨ सच दा घर बन जाए।
ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ, ਇਹ ਫਾਲਸਹੁੱਡ ਦੀ ਕੰਧ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਆਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਹੁਕਮੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਗਤੀ, ਵਿਰਾਗ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮਾਣਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਬਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੁਣਨ 'ਤੇ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਧਿਧਿਆਸਨ। ਸੁਣਨ, ਮਨਨ, ਨਿਧਿਧਿਆਸਨ। ਨਿਧਿਧਿਆਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਧਿਧਿਆਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ।
ये पहली पौड़ी मन्ने दी है इकला, नन्ने नूं इकला है, बड़ा बरीक, जिमें उपदेश बरीक है ना, बाणी बरीक है, इसका व्याकरण बड़ा बरीक, अर्थ बदल जाते हैं। गोह नाल पढ़ोगे, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुटका हाथ च रख के, चाहे जुबानी याद भी है, पर जिथे तुहाडे कोल समा है, टिक के बैठे हो, कोशिश करो गुटका हाथ च हो, गुटके विच ध्यान होवे, अखरां विच ध्यान होवे, फिर शुद्ध उच्चारण होएगा। बाकी पातशाह ने भी कहा, जे बाहरों भुल चुक बोलते भी खरे हर पाने, जे भावना तेरी सच्ची है, वाहिगुरू उस भावना नूं भाग लाएगा, पर जतन करके शुद्ध पाठ करेगा, अर्थ अपने आप खुलते जाएंगे। इत्थे इकला है मन्ने, इस तो भाव है जिन्हों ने मन्या है, जिन्हों ने जीवन बनाया है अपना। पातशाह कहते मन्ने की गत कही ना जाए, गत तो भाव है उसकी अवस्था, जिन्हों ने सुनिया, हिरदे वसाया, उसकी महिमा के गुण गाए, उसनों मन्या, तो उस उपदेश मुताबिक अपने जीवन को टालिया। पातशाह कहते उन्हों की अवस्था का फिर बयान नहीं हो सकता। जे को कहे, जो भी उस बारे कुछ बयान करना चाहेगा ना, पिछे पछताए, फिर पछतावा रह जाएगा। पछतावा की रह जाएगा कि मैं जतन तो किया वो गुणगान दे, उस महिमावान जिग्यासू की महिमा गाई कि वो बड़ा जुड़िया है, बड़ा जुड़िया है, पर कितना जुड़िया है बयान नहीं हो सकिया। शब्द चुक जाएंगे, जुबान थक जाएगी, कलम टैप, पिछे पछतावा रह जाएगा, मैं तो बयान कर ही नहीं सकिया। जे को कहे पिछे पछताए, सरमखंड की पातशाह ऐसे गल दोहराया है, सरमखंड की वाणी रूप तिथै काड़त कड़ी है बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जिन्हों ने सरमखंड की अवस्था विच पहुँच के अपने अंतशकरण रीमोल्ड किया, काड़त करन तो भाव है रीमोल्ड, अपने आप विच बदलाव आए, उन्होंने अवस्था एको ही गल है, मने की अवस्था। पातशाह उस चीज़ को रिपीट करके समझाया है, वो मार्ग दसिया है, 5 खंड जिहड़े ने, वो एक ब्लू प्रिंट बनाया है कि किस तरह हौली 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 स्टैप वाइज तू चढ़ेगा तो तेरी अवस्था विच बदलाव आएंगे, तो सचखंड तक की यात्रा पूरी हो जाएगी। मने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार। कागज़ कलम रख के भी तू लिखना चाहे नहीं लिख पाएगा, इतनी महिमा है मनन वाले दी। मने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। पातशाह कहते इन्नी वडियाई है नाम दी कि नाम नामी दे विच अभेद कर दिंदा है। नाम नामी विच अभेद है, जपन वाला भी नाम जपदे जपदे उसी च अभेद हो जाता है। ऐसा नाम निरंजन, निरंजन तो भाव है अंजन कहते हैं सुरमे नूं। अंजन का एक अखरी अर्थ भाव है कालक, भाव है एक अखरी अर्थ है माया। निरंजन तो भाव है माया रहत, वो नामी भी माया रहत है और नाम भी माया रहत है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जिन्हें मनिया है ओदा मन ही जानता है कि यह कैसा है नाम, यदि की महिमा है, वो अनुभव कर रहा है, डिफाइन नहीं कर सकेगा। प्यारी साध संगत असे जतन भी करिए ना, जो देवी गुण ने, जो नेचर है उसनों डिफाइन नहीं कर सका। छोटी जी मिसाल लईए, एक फूल है बहुत खूबसूरत है, ऐसे कहने बड़ा खूबसूरत है, यह दृश्य बड़ा खूबसूरत है, पर कितना खूबसूरत है दस सकने? कोई पूछे भी कितना खूबसूरत है, की डिफाइन करो। तुहानू भुख लगी है, मैनू भुख लगी है, डिफाइन कर दस कितनी भुख लगी है, नहीं दस सकते। मेरी भुख, मैं रज हो गई हूँ, तू कि मैं रजे है, नहीं दस सकते। प्यास लगी है, नहीं दस सकते। प्यास लगी है, बस कितनी प्यास लगी है
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। शब्द बहुत प्यारा है, आसान है, पर उतने ही गहरे अर्थ लगे जाता है, बहुत बरीक है। पहले तो दुलां समझ लेना, इत्थे हुण तिनों पौड़ियां अगों दुलां वालियां ने, नन्ने उत्ते दुलावां ने। भाव जे तू भी मन लवें, पहली पौड़ी सी जिन्हां ने मन लिया है। जे तेरी अवस्था भी बन जाए, ते भी नाम विच इकमिक हो जाए, तो तेरे अंदर की बदलाव आएंगे। हुण उसकी गल करन पातशाह। मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध, तेरा मन ते तेरी बुद्धि सुरत नाल जुड़ जाएंगे। ये साडा जो संसार है ना, शरीर किमें क्रिया करता है, जो बुद्धि निर्णय करती है उस हिसाब नाल साडा एक्शन होंदा है। पहले साडे अंदर मोटिवेशन आंदी साडी मत तो, मेरा बिलीफ सिस्टम कहते मेरी समझ च गल नहीं आ रही, मेरी मत च गल नहीं आ रही। उत्थों मोटिवेशन है, वो जन्मां दे संस्कार पे ने। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी। बेसिक रूप विच मन एक शब्द है, एक ही है। उहदे चार अंग इस तरह ने जिवें साडे शरीर दे वख-वख अंग ने। शरीर इक्को है। मैं कोई काम करके हटिया तो कोई पूछेगा पाल जी की कर रहे हो, मैं कह जी गड्डी साफ कर रहे हैं या रोटी खा रहे हैं। हुण रोटी तो मूँह नाल खाई जा रही है, पर मैं जुड़ी है ना नाल, शरीर जुड़े है ना नाल। इस तरह मन दियाँ चार फैकल्टीज़ ने, सुरत मत मन बुद्ध, या पुरातन ग्रंथां मुताबिक मन चित बुद्ध ते अहंकार। मूल इक्को ही है, अर्थ इक्को ही है। भाषा अलग अलग है, अर्थ इक्को ने। ये फैकल्टीज़ ने माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, बिलीफ सिस्टम, मेमोरी या मेमोरी कह लो, माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन, बुद्धि, साडा अहंकार, मैं जो है, और जड़ी मैमरी है चित्त या मत जिन्हों से कहने। ये जदों सुरत नाल जुड़ते हैं। हुण तक असी अपने मन की मर्जी नाल चल रहे हैं, अपने आप नूं अहम मैं समझ के कि मैं, ए शरीर मैं हाँ, ए मेरा घर है, ए मेरे बच्चे ने, ए मेरा परिवार है। पर पातशाह ते कह रहे ने सब मैं जोत जोत है सोए। नहीं, थोड़ा बरीक है। इस तरह ही है कि असे जो चीज़ रिफ्लैक्ट हो रही है उसनों सच मनी बैठे हैं, पर जो रिफ्लैक्ट कर रहा है उस वाल साडा ध्यान नहीं है। घड़ी विच टाइम देख रहे हाँ, पर देख किवें रहे हाँ इन्हां अखां द्वारा। पर अखां किवें देख रही ने, क्योंकि रोशनी है। हुण ध्यान साडा रोशनी च नहीं है, घड़ी नूं रिफ्लैक्ट कर रही है रोशनी। जे रोशनी ना हो तो घड़ी दा वजूद नहीं है।
हो के भी तुहानूं नज़र नहीं आ रही, तुसीं कहोगे तो घड़ी है ही नहीं। रिफ्लैक्ट करने वाली जोत जो है वो परमेश्वर आप है। सब में जोत, जोत है सोई। वो आप ही प्रकाशक रूप हो के, भाव जोत रूप हो के वो अंदर बैठा सब कुछ तैन दिखा रहा है। उन्हें ही तेरे मन नूं रिफ्लैक्ट किया है। पर असी की समझ बैठे कि मैं, ए मन मैं हाँ, ए मैं हाँ, ए विचकार हंकार खड़ा हो गया। तो असी फस गए। इनू अस इंग्लिश कहने हैं BMI तो साड़ी एग्जिस्टेंस है। इनू अस कहते हैं ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थाट्स, OET। ऑब्जेक्ट्स की दुनिया, इमोशंस की दुनिया तो थाट्स की दुनिया, अस ਇਹਦੇ फसे हुए हैं। जो दिखाई दे रहा है उन देख के साढ़े अंदर जो इमोशंस बनते हैं, जो असीं सोचना शुरू करने, साडा संसार उत्थे सीमित है। पर ऐसा बहुत कुछ है, सानू यह भी नहीं पता कि देख कौन रहा है, दृष्टा कौन है। उस दिन मिसाल लई सी, सीयर कैन नॉट बिकम सीनरी। दृश्य कदी दृष्टा नहीं हो सकता, तो दृष्टा कदी दृश्य नहीं हो सकता। भाव देखन वाला दृश्य नहीं बन सकता। देखन वाला वक है, दिखाई देने वाला वक है। ऑब्जेक्ट वक है, वह विटनेस वक है, वह साक्षी वक है। बहुत बरीक जे, बहुत सहज, एक जरा भी चूक गए तो इसे थिड़क जाएंगे अपने सब्जेक्ट तो। बहुत बरीक है, सूरत में समझना बहुत बरीक है। पर फिर विचारी है कि जो अंदर जोत है, आत्म रूप साडा, जो सारी सृष्टि व्यापक है। पातशाह कहते बाहर भीतर एक को जानो, एक गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। अपने आप नू जाने बिना यह भरम जो है यह नहीं जाएगा। मेरे पातशाह कहते ने बाहर भीतर एक को जानो। बाहर भी वही है, अंदर भी वही हो। इसलिए तो अपने अंदरों लब। काहे रे बन खोजन जाए, तू बाहर क्यों भटक रहे हैं? सर्वनिवासी हो तो सब जगह मौजूद है, तेरे अंदर भी है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, तेरे अंदर ही है। उन अंदरों खोज, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अपने अंदरों लब उसनू। कहा तू कहाँ बाहर क्यों टूर रहे हैं? बाहर परम है, अंदर ब्रह्म है। अंदर बड़ा अंदर वेखो केड़ा है। बाबा बुल्ले शाह कहते ने इत्थे दुनिया विच हनेरा है, ए तिलकन बाजी वेड़ा है। वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढेंदी है, ताइयों जान पई दुख सहंदी है। दुख भी ऐसे करके इसे बाहर लभ रहे हैं। बड़ी पुरातनिक कहानी कह लो, मिथ्यास कह लो, प्रमाण वजों गल समझने वास्ते एग्जाम्पल लैने पैंदे। महापुरुष बड़ी प्यारी साखी सुनाते हैं। कहते एक माई का कोई कीमती सिक्का, सोने की गिन्नी कह लो, डिग पई। अखां कमज़ोर सन, लभदी रही, लभी नहीं। घर तो दिन चढ़ा है, दिन ढलन लगा, घर अंदर हनेरा हो गया। बाहर बरांडे या वेड़े आ गई, हुण उत्थे लभदी है। उत्थे भी नहीं लभी, इन्हें घर के अंदर विड़े भी हनेरा हो गया। बाहर सड़क पर आ गई, उत्थे लभन लग गई। तो किसी सियाणे ने पूछा, माई की लभदी है? कहती मेरा सिक्का डिग गया। माई कित्थे डिगा है? कहती घर। कहती बाहर की लभनी है? कहती अंदर हनेरा से मैं बाहर लभन आ गई हाँ। प्यार नाल आखो सतनाम। साड़ी भी यही हालत है। गवाची चीज़ कित्थे है? गवाची अंदर है, से बाहर लभ रहे हैं। रब अंदर है। शो बुले शाह थी वख नाई, बिन शो दे दूजा कख नाई, पर वेखन वाली अख नाई। जद अखियां दित्तियां मुरशद ने, जद गुरु ने अखां दित्तियां, ज्ञान नेत्र दिते। ज्ञान अंजन गुर दिया, पढ़ो प्यार नाल। ज्ञान अंजन दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। परमात्मा की कृपा हुई, संत गुरु मिलिया, तो फिर उन्हें की कीता, अंदर तेरे ज्ञान का प्रकाश करता, तेन अंदरों ही रब लभ पिया। बस सुरत उस रब्बी जोत जो है, जिन्हों असी आत्मा कहने हाँ। कबीर साहब ने कहो, कबीर राम की अंश
वो प्रकाशक है, वो जोत है। इसका मतलब लाइट ना ले लेना प्लीज़। कई थावां ते टीकियां च लाइट भी अर्थ आंदा है, खास करके इंग्लिश के विद्वानां ने तो बहुत ज़्यादा, जो कबीर साहब का शब्द है ना जी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, गॉड क्रिएटेड लाइट एंड एवरीथिंग इमर्ज फ्रॉम लाइट। नहीं, लाइट अगर लवांगे तो लाइट का कोई रंग होंदा है, चाहे चिट्टा ही होवे, चाहे पीला होवे, चाहे लाल होवे, चाहे नीला होवे, लाइट का रंग होंदा है। तो पातशाह बानी च कहंदे ने, रूप न रेख न रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। वो रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है उसका, थापिया ना जाए कीता ना होए। रंग दा, लाइट का रंग होंदा है, वो लाइट नहीं है। लाइट मीन्स ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश रूप हो के, प्रकाशक रूप हो के, वो आत्म रूप हो के साढ़े अंदर बैठा है। वो रिफ्लैक्ट कर रहा है साड़ी फैकल्टीज़ नूं, साढ़े मन नूं। ते मन समझदा वो हंकार नाल जुड़ गया कि मैं, मेरा वजूद, ये सब कुछ मैं हाँ। वो मैं मनी बैठे इत्थे, बस इत्थों हो में जा गई, हूँ मैं, हूँ मैं, हूँ मैं। कबीर से भगत रविदास जी कहते हैं, जब तक मैं खड़ी सी ना, जब हम होते तब तू नहीं। हे मेरे मालिक, जब तक मैं अपने आप को मैं समझी बैठा सा, तब तक तेरा वजूद मैनू समझ नहीं सी आ रहा। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। हुण समझ आ गई कि सब कुछ तू है, सब में जोत जोत है सोई, सब बिच तेरा ही नूर है। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंद। खालक खलक, खलक में खालक, पूर रहा सर्वठाई। परमात्मा खलक है, खलक खालक ही है। खलक मान संसार, परमात्मा खलक ही है, खलक परमात्मा में है। वाह कित्थों हो गया, दो कित्थों हो गए। पातशाह ने सुखमनी साहब ही साढ़े ते सवाल उठाया है, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार, तन दूजा नज़र किवें आ रहा है। दूजा तो है ही कुछ नहीं, साबित कर दे कोई साबित कर दे कि दूजा कोई है ही नहीं। सब एक ही है। साहिब मेरा, पढ़ो प्यार ना, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है, एक है, एक परमात्मा। यही गुरु नानक का अनोखा उपदेश है। एक है परमेश्वर, एक है पार ब्रह्म, एक है उसे दा पसारा है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला तार जिन सब सगली मोही। निराकार आकार, वो निराकारी आकार हो के आया है, वो एक ही है। निरंकार निराकार आकार आप, वो आप ही आकार है, आप ही निराकार। आप पे एक, आप पे अनेक। एक अनेक है, फिर एक है। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात न जाला। अगम अगोचर रूप ना रेखिया, खोजत खोजत घट घट देखिया। जो खोजिया तो हर जीव विच वो आप विद्यमान है, हर रूप विच वो आप विद्यमान है, हर आकार विच वो आप विद्यमान है। निराकार भी वही है, आकार भी वही है। खालक खलक, आसा दी बारिश है ना, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। अपनी कृत विचों करता आप समाया है। असीं उहदी कृत हाँ, असीं कृत नाल जुड़े हाँ। कीते को मेरे समाने, करनहार तृण जाने। असीं कृत नूं पहाड़ जिन्ना मान लिया ते करनहार नूं जानिया ही नहीं कि करनहार कित्थे है। यही साडा दुख है, यही साडा विछोड़ा है। इसे करके साडा जन्म मरण दा गेड़ है। वो एक जो है साढ़े अंदर जोत रूप जो विद्यमान है, आत्म रूप जो विद्यमान है, वो सब प्रकाशक तो वो आप है। असी मैं समझी बैठे हाँ, ए मन ने मैं का रूप ले लिया, मैं दे अगों चार टुकड़े करके से संसार नाल जुड़ गए। इनू कहते वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स। वी बिकेम perceiver, feeler and thinker। बॉडी होगी परसीवर, मन हो गया फीलर, इंटेलेक्ट हो गया थिंकर।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੋ ਗੇੜਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਧੁਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਵੇਗੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧੀਰੇ 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 ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਸੋ ਤੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਪਹੁਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਕਹਾਂਗੇ ਥਾਟਸ, ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੱਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੋਕਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਤਮ ਤੱਤ ਕਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਕੇਰੀ ਸਰਕਰਾ, ਖਾਏ ਔਰ ਮੁਸਕਾਏ। ਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
अजे तो अद्धे साढ़े चो ऐसे ने जिन्हें नाम की दात ही नहीं ली है। प्यार नाल आखो सतनाम। अपने अंदर झाती मारो। मैं किसी इंडिविजुअल पूछा नहीं चला भी तुम नाम लिया कि नहीं लिया। नाम की एक विधि है। ठीक है, सानू सारिਆਂ पता वाहिगुरू नाम है, पर जिहड़ा नाम असी सुन के ले लिया वो एक अलग चीज़ है। जिहड़ा गुरु ने बख्शिश रूप में दिता, चाहे वही नाम है, उहदे च गुरु की फिर शक्ति नाल रली होंदी। इंज ही है जिवें किसे किते अटैक करना। एक फौजी है, उन्हें सामने दुश्मन को गोली मारनी है। गोली तो गोली है, वो चुक के इंज भी मार सकता है, सट लगेगी थोड़ी बहुत, पर जो उन्होंने रिवॉल्वर से चढ़ा के मारेगा सामने वाला फ्लैट। इस तरह ही है, जो गुरु कोलों विधिवत तरीके नाल नाम की दात लैने हैं ना, वो फिर गुरु की अपनी मेहर नाल जुड़ जाती है। प्यार नाल आखो सतनाम। पी अमृत ए मन तंत्र पिए, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मन तंत्र पिए। मन ते तन पे जाता है प्यारी साध संगत। वो है सुरत, वो आत्म रूप। ए मन ते बुद्धि फिर संसार मुखी नहीं रहते। जदों उहदे नाम नूं जप के नाम विच एकता मिली, नाम विच खुब गए, नाम विच रस आ गया। रस भी प्यारी साध संगत, उहदी भी एक विचार हिरदे तार लैना। असीं भोजन खाया, साड़ी जीवा ते कुछ पॉइंट्स ने जिथों टेस्ट पता लगता है। जो भोजन खाने तो गले तक भोजन पहुँचता है तो वह रस आता। अस कहने भोजन बड़ा स्वाद है। अजे भोजन करते क्यों हाँ कि शरीर नूं चलाने वास्ते, क्योंकि ऐसे भोजन ने जाके सूक्ष्मता दा, शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है मन, उन्हें मन बनना है। उस भोजन ने विचारां बननी है। इसलिए कहते सात्विक भोजन होएगा, सात्विक विचारां होंगी। तामसिक भोजन होएगा, तामसिक विचारां होंगी। राजसिक भोजन होएगा, राजसिक विचारां होंगी। जैसा जीवन बनाना है किसी ने, वैसा भोजन। जैसा अन्न वैसा मन। हुण उसनूं लैके अगे चलीए से बरीकी नाल। जदों से भोजन करने आ, जिहड़ा मुख मकसद भोजन का है, उन्हें शरीर जाके शरीर नूं एनर्जी देनी, उन्हें ब्लड बनना है, उन्हें मांस हड्डियाँ मज्जा पसलियाँ साड़ियाँ उन्होंने मजबूत करना है। भोजन तो अजे गले ही है, तो असें कहने बहुत स्वाद, कमाल हो गया, वाह, वो रस है। इस तरह मैं कल 4 स्टेजां सिमरन दी बेनती की सी। परा पशंती मदमा बैखरी। बैखरी है मुँह तो बोलना, मदमा है कंठ तो। अजे नाम कंठ ते पहुँचे है ना, तो स्वाद आना शुरू हो गया नाम। जदों कंठ ते कदों पहुँचेगा? जपदे जपदे वाहिगुरू। पढ़ो प्यार नाल, जपो 2 मिनट वास्ते। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। तुसी अनुभव करोगे जपदा मुँह तो हौली हौली साइलेंट हो गया, कंठ चो फुसफुसाहट चल रही। यह है रस, यह जाप बन गया। तो वो भोजन कदों बनेगा, वो एनर्जी कदों बनेगा? जो हिरदे पहुँचेगा, लिव जुड़ जाएगी। जो लिव जुड़ जाती है ना, संसार नाल तकरीबन रिश्ता टुट जाता है, खत्म हो जाता है। उस अवस्था में संसार नहीं रहता। मैं किसी हंकार वास्ते नहीं, वैसे इशारे मात्र। मेरी एक भैन उठी, कोई कीड़ा आ गया होना, मैनू भी नहीं पता भी की आया सी, बट मैं बैठा सा ते। पर मेरी कोई सुभाग समा होंदा, बिरती लग जाती। गुरु की शरण जाके वैसे ही आनंद है। वो कहते यू फील 100% प्रोटैक्शन। एक बच्चा जिमें, मैं क्यों कहना संगत गुरु की गोद विच बैठे हैं। देखो अगर असी वड्डे हाँ, वड्डे बच्चे नूं मां परे बिठांदी,
तो भोले बच्चे नूं, जिहड़ा बच्चा छोटा हुंदा, इनोसेंट चाइल्ड हुंदा है, जिन्हों टॉडलर कहने आ, उन्होंने अपनी गोद विच बिठाते भी ऐ किते कुछ इनू तकलीफ ना हो जाए, कि डिग ना पवे, कोई गलत चीज़ खा ना लवे, अपनी गोद ही बैठी है। असी आके गुरु की गोद विच बहना है। इतना भोलापन साडे अंदर होवे कि गुरु गोद ही बिठा ले। अपनी उम्र वाल ना देखना, अपने स्टेटस वाल ना देखना, उसकी दुनिया असी बच्चे ही हाँ। तुम मात पिता, पढ़ो प्यार नाल, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख ने। उस अवस्था में मैं इशारा कर रहा सी, बैठिया हुण तुसी सोचो विचारो, हो सकता है मेरे को कर्म माड़े होण ते मैनू उस जीव द्वारा ही कष्ट आना होवे, उन्होंने तुसी बचा नहीं सकोगे। जे मेरा उस कर्मा का रिश्ता है उस जी नाल कोई, वो मैनू कोई हिसाब मेरे नाल चुकान आया है तो चुका लेगा। साखी सब ने सुनी है कि सप ने बदला लेना सी, तो उन्हें किस रूप जाके, इतनी प्रोटेक्शन तो बाद ही, मैनू राजे का नाम भुल रहा है, उन्हें शीशे का घर बनवा के दरिया के विच रहा, उत्थे भी सप बन के पहुँच गया, बदला ले ले। जे तो उस जीव ने को मैनू कष्ट देना है, अदरवाइज गुरु की गोद ही बैठे अगर सिमरनी जुड़े हैं ना, दुनिया की कोई वायलेंट तो वायलेंट शक्ति भी आके थोड़ा नुकसान नहीं कर सकती। प्यार नाल आखो सतनाम। यह गुरु की शरण है, जिससे सही मैंने शरणागत हुई। मैं उस अवस्था जे नहीं पहुँचा, मैं कि समझो भी पाल जी ने शायद अवस्था पाली नहीं, मैं तो आप विद्यार्थी हाँ, मैं तो आप गुरु का बच्चा, आप संगतां दे चरणों की धूड़ी हाँ। तुहाडा आशीर्वाद लैना ना कि मेरे ते बख्शिश करो, असीस दिओ दिओ सजन असीसड़ियाँ, जो होवे साहिब स्यों मेल, इतना मिलाप हो जाए, भोलापन आ जाए, इतना भोलापन आ जाए। इत्थे गुरुदेव भगत रविदास जी कहते हैं, जब हम होते तब तू नहीं, जब तक यह अहंकार खड़ा है तू नहीं है, अब तू ही, हुण तू ही है, मैं ना ही। अनल अगम जैसे लहरमयो, दद जल केवल जल माही। हुण समझ आ गई कि समुंदर दियां लहरां जड़ियां ने वो भी पानी ने, बुलबुले भी पानी ने, जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते भिन्न ना होई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है। हुण मैं नहीं, हुण तू ही है प्रभु। जिमें समुंदर का पानी ही बुलबुले है, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिन सै नीत। असे रोज़ बंदे ते मिटदियां, सृष्टियाँ रोज़ बंदियां ते मिटदियां हैं, पर मूल जो परमेश्वर है उत्थे दा उत्थे ही है। इशारा है शब्द का। भगत रविदास जी कहते ने, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, ऐसा भ्रम है, जैसा मानिए होए ना तैसा। जो जब मनी बैठे हैं, एक दुनियावी मिसाल ले लो, असी कहने जी स्काई ब्लू शर्ट पाई है वीर जी ने, स्काई ब्लू पगड़ी बनी वीर जी ने, वो वीर जी ने स्काई शर्ट पाई है, मतलब आकाश का रंग नीला कह के असी कहने हैं ना, क्या आकाश नीला है? बच्चों ने जाके घर पूछना, इज स्काई ब्लू? स्काई इज नॉट ब्लू। यह लग रहा है, यह भरम है, यह छोटे लेवल का भरम है, वड्डी लेवल का भरम है। यह संसार असी सच मनी बैठे। तुहानू मैं अपने तो वख समझी बैठा, यह मेरा भरम है। तुसी मैनू अपने तो वक्त समझी बैठे हो, तुहाडा भरम। मूल ही असीं एक ही हाँ, एक पिता एकस के हम बारिक। साडा मूल एक ही है। वही पंज तत्तां दा शरीर तुहाडा है, वही पंज तत्तां दा मेरा है, वही उस जोत रूप विच परमेश्वर आप टिकिया है, वही आत्म रूप विच परमेश्वर मेरे अंदर टिकिया है। बस यह ज्ञान नहीं है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी। एक राजा बैठा बैठा अख लग गई, सो गया, समझ आई मैं भिखारी हाँ, सुपना देखिया भिखारी हाँ, रोटी मंगदा वां। चिल ने झपट्टा मारिया, एक रोटी हाथ च किसी ने पाई, तो चिल झपट्टा मार के लै गई। अख खुली झटके नाल देखिया तो मैं राज सिंघासन ते हाँ। तो हुण सोचदा है कि की सी अपने गुरु नूं। यह राजे जनक की कहानी जे, रिश्ता अष्टावक्रों के गुरु सन, उन्होंने पास गया। राजे जनक की बड़ी महिमा बानी च,
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजे जनक की बड़ी महिमा है बाणी च। अपने गुरु अष्टावक्र जी को गए राजा जनक तो कहने लगे महाराज यह दसो वो सुपना सी कि यह सुपना है, वो सच सी कि यह सच है, मैं राजा हाँ सच है कि मैं भिखारी सा। अष्टावक्र कहते ना वो सच है ना यह सच है, वो सुतियां अखां दा सपना सी, यह जागदियां अखां दा सपना। बस उत्थे फिर भगत रविदास जी ने शब्द पूरा किया, कहते ने राज भुजंग प्रसंग जैसे अब कुछ मरम जनाया। जिमें राज रस्सी पई सी हनेरे करके भरम हो गया, सप है डर लगन लग गया। किसी ने लाइट दिखाई, सप नहीं भाई रस्सी है। यह बहुत चलता है प्रमाण वेदांत च, प्रमाण बहुत चलता है सप ते रस्सी का। रज मैंने रस्सी भुजंग मैंने सप, राज भुजंग प्रयंग प्रसंग जैसे अब मनम जनाया। अनक कटक जिवें मेरिया भैनां वक् वक् तरह के गहने पांदियां, पुछो जी मेरिया वालियां ने, मेरे कड़े ने, मेरी हसली है। मूल की है सोना। इसलिए बाणी कहती सराफ दृष्टि होवे। सराफ सोना देखता है, जिहड़ा सुनियारा है सोना घड़न वाला वो डिज़ाइन देखता है। सुनियार कहता मैनू डिज़ाइन का मतलब नहीं, यदि तत्व किन्ना है, किन्ने कैरेट का सोना है, मैं वो पैसे दिने। अनक कटक जैसे भूल परे अब से कहते कह ना आया। फिर कहते भगत रविदास जी सर्व है एक, सब विचों एक परमात्मा है। सर्व है एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई। सब घटा में घट मैंने शरीर, सब शरीरों च इको आप परमेश्वर बैठा है। कत्ता बकता सुनता सोई, वो आप ही कथन करने वाला, आप ही सुनन वाला है। वही वो भोगता है, वही वो करता है। पाशा बानी भगत रविदास जी कहते ने अब कश मरम जनाया, कनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। सर्व है एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे, उते हाथों भी नेड़े आ। सहजे होए सोई, पर कदों पता लगेगा जदों अडोलता सहज अवस्था समाधि अवस्था। ए सुरत जी गल कर रहे हैं पातशाह। मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, जदों ए मन ते बुद्धि सुरत नाल एक हो गए ना, उदों समझ आएगी कि सब गोबिंद है। बाकी तो लिप सर्विस रह जाएगी। अनुभव उदों बनेगा जदों सुरत दा ज्ञान होएगा। मन ते बुद्धि संसार मुखी नहीं, ए ऑब्जेक्ट्स फीलिंग ते थिंकिंग दी दुनिया तो निकल के असी इमोशनस एंड थॉट्स दी दुनिया तो निकल के असी उस कॉन्शियसनैस वल चलांगे। वो सुरत ते मन ते बुद्धि नूं कॉन्शियसनैस दे दीदार होणगे। उत्थे जाके फिर अहंकार डिगेगा। मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। उत्थे फिर सारी सृष्टि का ज्ञान, सारी दुनिया के तत्वां का ज्ञान तेरे अंदर आ जाएगा। मन्नै मूँह चोटा ना खाए। मूँह चोटा तो भाव होंदा है हार होनी, जिंदगी फिर हार का सामना नहीं करना पेगा। मन्नै जम के साथ ना जाए। हुण जन्म मरण तो रह ही नहीं गया, जम की करेगा। मन्नै जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोई। पातशाह कहते ने जिन्होंने जानिया है वो फिर जानते ने दा स्वाद की है। ऐसा नाम, ये नाम की वडियाई है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। आज इतनी ही सेवा परवान करनी प्यारी साध संगत। बानी अगाध बोध है। बानी पढ़द्या, बानी विचारद्या अनेकां अनेक भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्श देनियां। सतगुर पातशाह रहमत करन। बानी दी सोझी, बानी दा ज्ञान, बानी दा प्रकाश पढ़द्या सुनद्या दे हिरदियां विच कर देन। बानी दे भाव पढ़द्या सुनद्या दे हिरदियां विच बसा देन। असीस रूपी फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।